Assalamu alaikum, dear students. Welcome in my class. Today I am going to discuss about gaseous exchange in plants and in animals. How it is possible that gases exchange in the body of plants and animals. In human body or in living organism, breathing is a mechanism which is used for gaseous exchange. But in plants, there is different mechanisms. Stomata are used and lenticels are used. So I will elaborate about it. Keep in mind, dear students, when we study about plant structure, gaseous exchange in plants and in animals, humans. As we know very well that photosynthesis take place in the leaves of the plant, and respiration also takes place in mitochondria, which are also present in leaf of the plant. So structure of the leaf is very important. It is cuticle. On top of the leaf there is a cuticle. Leaf is actually a sandwich structure, just like this, like a sandwich, like a burger. This is upper epidermis, this is lower epidermis, and there are mesophyll cells between them. I will draw a structure. There are cells. This is upper epidermis. Then there are mesophyll cells. On lower mesophyll cells there are spaces, and there is lower epidermis. There are guard cells, and these are stomata. Gaseous exchange takes place here. CO2 is absorbed by the plant and oxygen is repelled out of the body. These are spaces that help in the exchange of gases. But this is लीफ स्ट्रक्चर. लीव्स में पत्तों में तो गैसियस एक्सचेंज हो जाएगी स्टोमेटा के थ्रू, बट इन स्टेम, व्हेन वी स्टडी अबाउट स्टेम, mature stem and mature root, there is bark present on the surface of the plant structure. Here there are specialized structures which are just pores. These are called lenticels. These lenticels help in the exchange of gases, and same in mature roots, mature stem and mature stem and root. But in immature roots, gaseous exchange also takes place by diffusion. There is no bark present, so gases are exchanged by the process of diffusion. So lenticels and stomata, these are two parts which help in the exchange of gases in plants. Now the important step to understand the exchange of gases. Human being, how does exchange of gases takes place in human being? My dear students and parents who are attending my class, who are observing me, who are listening me, who are viewing me, keep in mind, science starts from observation, then there is experimentation, and then we conclude results. Dear students and parents, I request to all of you, pay your attention to your students, to your kids, and ask them to observe the nature. First of all, there is observation. It is very common question. What is breathing? Exchange of gases that takes place in all living organisms and human being. But anytime when I ask to students that what is breathing, what is respiration, they simply answer me that every time when ask them, जब भी मैंने बात की है कि respiration क्या है और कहाँ ये होती है, तो मुझे स्टूडेंट बोलते हैं कि लंग्स में होती है. जब भी पूछता हूँ कि ब्रीदिंग क्या है, तो कहते हैं सांस लेने को ब्रीदिंग बोलते हैं. ऑब्जर्वेशन ज़ीरो है, ज़ीरो ऑब्जर्वेशन है हमारी बॉडी में. लंग्स एक्चुअली माय डियर स्टूडेंट्स, ये लंग्स जो है ये एक पंप है. अब आप इमेजिन करें कि मैं एक इंसान हूँ, मैं एक ह्यूमन बॉडी हूँ, तो ये लंग्स है, ये एक पंप है.
इनका कोई काम नहीं है लंग्स का, ये को ब्रीदिंग में रोल प्ले कर रहे हैं, पंपिंग कर रहे हैं, गैस को इन लेकर जा रहे हैं और आउट लेकर आ रहे हैं। अंदर जब गैस जाएगी, इफ़ वी टेक इन गैस इट इज़ कॉल्ड इनहेल एंड व्हेन वी गेट रिड ऑफ CO2 इट इज़ कॉल्ड एक्सहेल। ये पंप है, ये तो गैस को लेकर जा रहा है अंदर और बाहर एक्सपेल कर रहा है। इसका रेस्पिरेशन से कोई तल्लुक नहीं है, रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। रेस्पिरेशन के बारे में मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि रेस्पिरेशन इस स्ट्रक्चर में होती है, ये डबल ए स्ट्रक्चर है, ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल में एक लेक्चर पब्लिश किया हुआ है, मैंने एक लेक्चर ऑन एयर किया हुआ है, आप मेरे उस लेक्चर को ऑब्जर्व ज़रूर करें ताकि आपको रेस्पिरेशन के बारे में पता चले। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग किधर होती है? ब्रीदिंग होती है हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू और माउथ कैविटी के थ्रू। नॉस्ट्रल्स और माउथ कैविटी ये दोनों ओपन होते हैं फेरिंग्स में। फेरिंग्स एक चैम्बर है, ये खुराक की नाली को और ट्रेकिया को और हवा की नाली को कनेक्ट करता है हमारे माउथ और नॉस्ट्रल्स के साथ। इसमें 4 ओपनिंग है, 4 ओपनिंग्स, एक नॉस्ट्रल की तरफ जाएगी, एक माउथ की तरफ, एक एसोफेगस की तरफ और एक ट्रेकिया की तरफ। यहाँ से लेरिंग्स में ये ओपन होती है, लेरिंग्स से एक वॉइस बॉक्स है और ये ट्रेकिया है, इसके साथ ये एसोफेगस है। कितना अच्छा लग रहा है, मैं ये डायग्राम इधर ड्रा कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स अक्सर यही देखते हैं कि टीचर क्या काम है, ऑब्जर्वेशन के बगैर टीचर की ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए। वो ने बताया कि ये एसोफेगस है, ये ABC है, ऑब्जर्वेशन 0 है। ये जो आपको मेरे सामने ये नेक में नज़र आ रहा है ना, ये ट्रेकिया है और ये बैकबोन है मेरी कमर की, यहाँ मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, ये वाली साइड ऑब्जर्व करें, ये बैकबोन है, इधर यहाँ रीढ़ की हड्डी आएगी और ये क्या है? ये ट्रेकिया है, हवा की नाली है। इन दोनों के दरमियान में ये जो सेंटर है, यहाँ एसोफेगस या खुराक की नाली है। तो ये हमारा जो नेक है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी होती है, उसके बाद खुराक की नाली होती है और सामने फिर ट्रेकिया होता है जिसमें से गैस पास होती है और यहाँ पर वॉइस बॉक्स होता है। ये जो बाहर निकला हुआ है ना, ये वॉइस बॉक्स है, यहाँ वाइब्रेशन होती है, लेरिंग्स है, इसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं। इसके ऊपर एपिग्लॉटस होता है, ढकना होता है। जो खाना हम खाते हैं तो ये उसके एपिग्लॉटस के ऊपर से गुजर कर एसोफेगस में जाता है या खुराक की नाली में जाता है। तो ये हमें ऑब्जर्वेशन जो है ना, इस पर फोकस करना चाहिए। जब यहाँ से खुराक आती है तो सिंपली ये ट्रेकिया, इसमें इस तरह के C शेप रिंग्ड होते हैं। अगर ये C शेप रिंग्ड नहीं होंगे तो ये स्ट्रक्चर नहीं होगा। क्या होते हैं ये C शेप रिंग? इधर ऑब्जर्व करें, यहाँ देखेंगे ये रिंग होंगे, ये देखें, ये जो पाइप है ना, इसमें रिंग है, दबा के देखेंगे तो ये रिंग नज़र आएंगे, में हड्डियों की तरह का स्ट्रक्चर नज़र आता है। ये C शेप रिंग होते हैं, C की तरह के होते हैं, इन्हें C शेप रिंग बोलते हैं। अब ये जब ट्रेकिया नीचे जाती है तो ये डिवाइड हो जाती है सिंपली, इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है, इन्हें ब्रोंकाई कहते हैं। फिर ये आगे नेक्स्ट फर्दर डिवाइड होती रहती है एक लंग में, ब्रोंकियोल्स में फर्दर डिवाइड हो जाती है और ये हमारा एक लंग्स इस तरह डेवलप होता है और एक लंग हमारा इस तरह डेवलप होता है। राइट लंग जो है हमारा, इसमें 3 लोब होते हैं और लेफ्ट लंग में 2 लोब होते हैं। रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लेफ्ट साइड पे हार्ट होता है तो यहाँ पर 2 लोब होते हैं और राइट साइड पे हार्ट नहीं होता है तो यहाँ 3 लोब होते हैं। बड़ा होता है राइट साइड का लंग आपका कंपैरेटिवली। यहाँ जब स्ट्रक्चर आता है तो एंड होते हैं ये एल्वुलाई पे, बैलून होते हैं। एल्वुलाई किधर होते हैं? ये स्पॉन्जी टाइप एक स्ट्रक्चर होता है लंग्स का, तो इसकी जो वॉल होती है, दीवार होती है, उसके अंदर ये बैलून होते हैं। इन बैलून्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ये इस तरह बैलून टाइप क्लस्टर होते हैं। अगर एक एल्वुलाई को देखा जाए तो वो ये इस तरह होगा, ये स्ट्रक्चर होता है। इसके ऊपर खून की नालियाँ होती हैं, कैपिलरीज होते हैं। विल्ली लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे विल्ली हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, उसके ऊपर ब्लड कैपिलरीज होती हैं। तो यहाँ से ऑक्सीजन हम अंदर लेकर आएंगे और ये सीधी यहाँ से होकर हमारे ब्लड में चली जाएगी। ब्लड में रेड ब्लड सेल। अब ये मैं टिप देता होता हूँ, तो एक टिप मैं अभी आपको देने लगा हूँ, बल्कि अब टिप्स का टाइम स्टार्ट हो गया। अभी आपकी ऑब्जर्वेशन कुछ करवाऊंगा, मैं तो एक्सपेरिमेंट करवाता होता हूँ बच्चों को। मैं सिर्फ यहाँ लिखता नहीं होता, मेरा ना कोई असेसमेंट है ना मैंने एग्जाम्स में अपियर होना है। बच्चों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि वो क्या स्टडी कर रहे हैं और किस मकसद के लिए उन्होंने मेरी वीडियो को क्लिक किया। ये क्लस्टर, एल्वुलाई, ये जितना आपने ट्रेकिया स्टडी किया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स, इसके 3 पार्ट, इसके 2 पार्ट, ये सारी चीज़ें आपने याद कर ली। क्वेश्चन ये पता था कि ब्लड में जब ये जाएगा ऑक्सीजन तो क्या कैसे गैसेस एक्सचेंज होगी। ये पंप है, ये सारे का सारा निज़ाम ये पंप है। इसने तो सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना है और CO2 को बाहर लेकर आना है।
ये गैसियस एक्सचेंज है। पंप का तो यही काम है। ब्लड में चली जाएगी। ब्लड में बच्चे याद करते हैं कि कौन सा सेल है जो ब्लड को ऑक्सीजन को लेकर जाता है, हीमोग्लोबिन होती है। बच्चे रेड ब्लड सेल लेकर जाता है ऑक्सीजन को, इसके ऊपर हीमोग्लोबिन होती है। मैं बोलता आता हूँ कि ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत होती है, तो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है दुनिया उसको हमेशा ही खुश आमदीद कहती है, रेड कारपेट उसका इस्तकबाल करती है, और जिसकी ज़रूरत नहीं होती उसको फेंक दिया जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ कुदरत का ऐसा ही निज़ाम है। क्योंकि ऑक्सीजन की हमें बहुत ज़रूरत होती है, ये हमारी बर्निंग के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में यूज़ हो रहा होता है। तो रेड ब्लड सेल इसको रिसीव करता है और इसका वेलकम करता है, वार्म वेलकम रेड कारपेट। चूँकि रेड ब्लड सेल है तो यहाँ पर क्या है, रेड कारपेट इस्तकबाल हो रहा है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन इसको रिसीव करती है, रेड ब्लड सेल जो है ये ऑक्सीजन को रिसीव करेगा और ब्लड में चला जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया तक ले जाएगा। जब वहाँ पर CO2 पैदा होगी उसको फेंक दिया जाएगा प्लाज्मा में, वो जो लिक्विड होता है। ना तो इसको रेड ब्लड सेल पूछते हैं, ना वाइट ब्लड सेल, ना प्लेटलेट्स। खून में कोई खुलिया या सेल इसको फिर पूछता भी नहीं है। CO2 होते खाती हुई प्लाज्मा में आती है, यहाँ से बॉडी में से एक्सपेल कर दी जाती है। तो याद रखने के लिए ये टिप दे रहा हूँ। मैंने टिप दिया है कि ऑक्सीजन का रेड कारपेट इस्तकबाल, इसका मतलब है कि रेड ब्लड सेल इसको कैप्चर करता है हीमोग्लोबिन की मदद से। और CO2 कैसे आती है ब्लड में से, ये प्लाज्मा में पास थ्रू होकर आती है। तो ये एक तो ये टिप है। दूसरी ये टिप है कि ये गैसियस एक्सचेंज हो रही है, ऑक्सीजन आई है, CO2 निकल गई है। ये कैसे हो गया, ये क्या साइंस है? क्या यहाँ पर डायग्राम बनाऊंगा, बच्चों को ये बताऊंगा ये आई और ये गई, बच्चों को भी फिर आई और गई हो जाएगा? ऐसे नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट मस्ट बी क्लियर इन देयर कंसेप्ट। मैं ऑब्जर्वेशन भी करवाता हूँ और एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ बच्चों को लेकर जाता हूँ। तो मैं आपको ऑब्जर्वेशन करवाने लगा हूँ। होता ही है कि हमारे ये एब्डोमिनल कैविटी है, ये चेस्ट कैविटी है, इसे चेस्ट कैविटी बोलते हैं, यहाँ तक है। इसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी है। देखिएगा स्ट्रक्चर ऐसे होता है हमारा। ये चेस्ट कैविटी है यहाँ तक, और ये एब्डोमिनल कैविटी इसमें फेल होती है ये सारी। इसमें स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ये सारी की सारी अंदर से फेल होती है। फूड भी होती है, हमने जो खाया पिया होता है वो सारा जो भरा होता है हमारा पेट, आपने देखा होगा एब्डोमिनल कैविटी, ये मोस्टली फिल्ड होती है। तो ये प्रेशर, ये देखिए मेरी टमी भी थोड़ी सी आगे की तरफ निकल आती है हमारे लोगों। ऐसे ही ऊपर ये चेस्ट तो खाली है, इसमें तो सिर्फ एयर है या लंग्स है, तो यहाँ पर कोई फूड तो है नहीं। तो ये तो एक खाली पोर्शन है। यहाँ पर ये अगर रिब्स ना हो ना, ये हड्डियों का ढांचा ना हो, तो कुछ भी नहीं है। हम बैठ जाएं नीचे के नीचे, बिल्कुल हवा की तरह, कपड़े की तरह नीचे बैठ जाएं, तो ये हड्डियों का ढांचा है। रिब्स हैं 24 रिब्स हैं, 12 पेयर हैं यहाँ पर। 2 दर्जन बेटा यहाँ रिब्स होती हैं, हमें इस बारे में पता होना चाहिए। 1 दर्जन इधर होती है, 1 दर्जन इधर होती है। 24 भी कह सकते हैं या 12 पेयर भी कह सकते हैं। 2 दर्जन यहाँ पर हड्डियों के ढांचे होते हैं। पीछे बैकबोन है, तो अंदर हवा है खाली, इसी ने सपोर्ट किया हुआ है, ये हड्डियों के ढांचे ने, ये स्केलेटन ने। तो अब होता क्या है कि यहाँ पर टमी में फूड होती है, इसका प्रेशर होता है, तो यहाँ पर एक पर्दा होता है जिसे डायाफ्राम बोलते हैं। ये डोम या गुंबद की तरह इस तरह हुआ होता है। इसने ऊपर टमी ने जिस तरह पेट को बाहर निकाला होता है, इसको भी ऊपर की तरफ खींचा होता है, क्योंकि ऊपर से हमारा चैम्बर खाली होता है। तो जब हमने सांस लेना है तो होता क्या है, सबसे पहले ये जो डायफ्राम है इसमें कंट्रैक्शन आती है। इनहेल में कंट्रैक्शन होती है, कंट्रैक्शन, इनहेल में कंट्रैक्शन होती है। इनहेल तब होगी जब कंट्रैक्शन होगी, नंबर 1 रिब मसल में, और नंबर 2 डायाफ्राम में। ये जो पर्दा है, डाया और रिब के जितने मसल हैं इनमें कंट्रैक्शन होगी तो इनहेल होगा। अब ये कंट्रैक्शन से इनहेल कैसे होती है, मैकेनिज्म क्या है ब्रीदिंग का? ये जब डोम को, गुंबद को, ये जो डोम शेप डायफ्राम है, ये खींचेगा ना, सीधा हो जाएगा बिल्कुल ऐसे नीचे की तरफ, ये ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर पेट को नीचे दबाएगा, ये देखिएगा, ये नीचे दबाता है, ये देखें। और ये बाहर की तरफ आती है चेस्ट, क्योंकि इस चेस्ट को मसल जो है ना इस तरह, ये देखिएगा, ये मसल जब खींचते हैं ना तो ये देखें हड्डियाँ ऊपर की तरफ आ गई हैं। इनको मसल यहाँ होते हैं, ये मेन स्टर्नम के साथ, स्टर्नम बोलते हैं जिसके साथ रिब्स जुड़ी होती हैं। तो इसको ऐसे खींचते हैं और ये इधर से खींचते हैं तो हड्डियाँ बाहर की तरफ निकल आती हैं। इनमें भी मसल में कंट्रैक्शन हुई है और ये रिब्स हैं बाहर की तरफ निकली हैं। और डायफ्राम में भी कंट्रैक्शन हुई है, ये अकड़ कर नीचे चला गया। तो ये चैम्बर जो चेस्ट कैविटी है इसमें जगह ज़्यादा हो जाती है, ये इस तरह फूल जाती है, बड़ी जगह हो जाती है इसमें।
तो फिर क्या होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन राशन हो जाती है। फिर जैसे ये रिलैक्सेशन होती है एक्सेल में, तो रिलैक्सेशन में क्या होगा, ये देखिएगा, अब मैं इनहेल करने लगा, चेस्ट कैविटी बड़ी हुई है, हड्डियाँ बाहर की तरफ आई हैं, और डायफ्राम जो है उसमें तनाव आया है, वो स्ट्रेट हो गया है, कंट्रैक्शन हो गया उसमें। और एक्सेल में क्या होता है, देखिएगा, ये सब कुछ बंद हो गया। जब सब कुछ बंद हो जाता है, डायफ्राम भी अपनी उस रिलैक्स पोजीशन में आ जाता है, रिलैक्स हो जाता है ना, ये रिलैक्स पोजीशन में है, तो फिर क्या है, गैसेस हमारी बॉडी में से बाहर निकल जाती हैं। तो ये ब्रीदिंग का मैकेनिज़्म है, ये कोई नेचुरली नहीं चल रहा है, अल्लाह ताला ने हर चीज़ में, हर इंसान में एक सिस्टम बनाया हुआ है। तो ब्रीदिंग के इस मैकेनिज़्म में इंपॉर्टेंट टिप जो मैंने आपको देनी थी कि इनहेल में कंट्रैक्शन होती है, इधर स्टर्नम भी कंट्रैक्ट करती है मसल को, और डायफ्राम भी कंट्रैक्ट हो जाता है। अब बच्चे कहते हैं जब चीज़ें कंट्रैक्ट होती हैं या सुकड़ रही होती हैं तो टमी बड़ी कैसे हो जाती है, ये जो चेस्ट कैविटी है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि जब चीज़ें सुकड़ रही हैं तो ये सारा कुछ बड़ा कैसे हो रहा है। आप देखिएगा, ये मेरा आर्म है, ये छोटी फॉर्म में है, ये नीचे इसके मसल्स हैं, ये मसल अब कंट्रैक्ट होने लगे, सुकड़ने लगे हैं, तो आर्म देखें लंबा हो गया ना, बड़ा हो गया। तो मसल सुकड़ेंगे तो बड़ा होगा ना, आर्म लीवर की तरह ये काम करते हैं। रिब्स के मसल भी ऐसे ही काम करते हैं, डायफ्राम भी ऐसे ही काम करता है। तो इधर जब कंट्रैक्शन होती है तो एक्चुअली कंट्रैक्शन मसल में हो रही होती है और मूंद फैल रही होती है। ये ऐसे होता है, ये देखें, ये यहाँ मेरे मसल हैं, यहाँ मेरे मसल हैं, आप देखिएगा, ये ऐसे होता है, ये अब मसल में, और ये रिलैक्स हो गए, ये कंट्रैक्ट हुए हैं। अब मसल कंट्रैक्ट होते हैं तो क्या होता है, ये हड्डियों का ढांचा बाहर की तरफ निकलता है, तो कैविटी में स्पेस बढ़ जाती है। बट डियर स्टूडेंट्स, आई एम श्योर कि आपको ब्रीदिंग और प्लांट्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज के बारे में डेफिनेटली जो कन्फ्यूजन हो गए वो दूर हुए होंगे, और जो टिप्स मैंने बताई हैं इनके बारे में भी आपको क्लियर हुआ होगा। आज की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, चाहे ये प्लांट हो, चाहे ये इंसान हो, ह्यूमन बीइंग हो, इसमें गैसियस एक्सचेंज जब होती है तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा होता। और प्लांट हो या फिर इंसान हो, इनकी ये जो गैसेस हैं जिनकी ये एक्सचेंज हुई है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं, वहाँ जाकर इनकी बर्निंग में, फूड की बर्निंग में ये हेल्प करते हैं, और वहाँ रेस्पिरेशन होती है। ये गैसियस एक्सचेंज का एक्चुअली असल काम माइटोकॉन्ड्रिया में, तो रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, चाहे वो प्लांट का सेल हो, चाहे वो हाथी का सेल हो, एलिफेंट हो, गोट हो, कोई भी इवन मैंगो फ्रूट हो, आपका कोई भी दुनिया में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी रेस्पिरेशन सेल में होती है। इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ये जो लंग्स काम करें, ये गैसियस एक्सचेंज है। इंसानों में से ब्रीदिंग कहते हैं, प्लांट्स में से गैसियस एक्सचेंज, इसकी कोई टर्म नहीं है। तो बच्चों को ये क्लियर होना चाहिए कि ये ब्रीदिंग है, ये पंप है जो गैस को, ये स्टोमेटा की तरह काम कर रहे हैं ना, ये माउथ स्टोमेटा ही है, उसके नीचे पंप लगे हुए हैं। अब ये हमारी बॉडी में तो लंग्स हैं, और पत्तों में क्या होता है, यहाँ स्पेसेस होती हैं, ये देख रहे हैं नीचे वाले मेसोफिल सेल, इनमें खाली जगह होती है, यहाँ गैस आती है, वहाँ ज़रूरत के मुताबिक डिफ्यूज़ हो जाती है जहाँ इसको यूज़ होना होता है। तो आई एम श्योर कि गैसियस एक्सचेंज के बारे में जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं वो मैंने बच्चों के क्लियर किए हैं। दे विल गॉट मैक्सिमम क्लियर कंसेप्ट इन दिस लेक्चर एंड दिस विल हेल्प देम टू अंडरस्टैंड। आपको ये फ्यू मिनट्स का लेक्चर इस पूरे चैप्टर को, गैसियस एक्सचेंज के कंप्लीट चैप्टर को रेडी करने में हेल्प करेगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम श्योर यू विल लाइक माय lecture, my gaseous chain topic. Kindly share and like it. If you have any inquiry, if you have any question, if there is any ambiguity, I will try my level best to explain you, to give you answer as soon as possible. Thank you. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.